Assalamu alaikum viewers, welcome to Study PK. So in this lecture I am going to discuss about the Assistant Disaster Management paper which was held on 3rd July. So without wasting any time शुरू करते हैं आज का lecture. First question is the which player is called the flying horse? So Samiullah Khan is a hockey player. So he is known as the flying horse. So Samiullah Khan is the right answer. Next one is the which country is known as the country of flowers? So Netherlands या जिसे Holland भी कहते हैं. So this country is known as the country of flowers. Next question is the world narrowest strait का नाम बताना था. So world narrowest strait is the Bosphorus Strait. So Bosphorus Strait connects the Black Sea with the Sea of Marmara. So Bosphorus Strait is the right answer. Next is the Bahadur Shah Zafar jailed in which city after the 1857 war? So he was exiled in Yangon, ये जिसे रंगून भी करते हैं, ये बर्मा या अब इसका जो न्यू नेम है म्यांमार, ये वहाँ पे लोकेटेड है. नेक्स्ट इज दी आइनैन का सिनोनिम बताना था. आइनैन का मतलब होता है बेवकूफ़ या अहमक. सो इसके सिनोनिम हो सकते हैं absurd, idiot, foolish, stupid. So these are the synonyms of the आइनैन. नेक्स्ट इज दी एक्सूड का सिनोनिम बताना था. सो एक्सूड का मतलब होता है डिस्चार्ज होना, खारिज होना. सो evaporate, percolate, रिलीज, ये इसके सिनोनिम है. नेक्स्ट इज दी current High Commissioner of Pakistan to India is the Aftab Hassan Khan is the current High Commissioner of Pakistan to India. Next question is the shortcut key Control plus N is used for the create a new document or the folder. So कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट या फोल्डर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं Control plus N. Next is the Pakistan lies in which tropical zone? So Pakistan lies at the Tropic of the Cancer. Tropic of Cancer, ये इसका right answer है. Next question is the how many votes are required Pakistan to exit from the grey list? So 12 वोट रिक्वायर है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए. So 12 इसका right answer है. Next is the सो FATF का जो FATF का हेडक्वार्टर है ये फ्रांस में है. फ्रांस के जो सिटी है पेरिस यहाँ पे लोकेटेड है. नेक्स्ट इज दी रिसेंटली विच कंट्री अबॉलिश द PM ऑफिस? सो तुर्की अबॉलिश द PM ऑफिस. नेक्स्ट इज दी Karakum Highway completed in which year? So it was completed in 1978 and it's open for public in 1979. Next is the White Haven Beach located in which country? So it's located in Australia. So I think option में इसका none of these right answer था. Next is the capital of Georgia का capital बताना था. So Tbilisi ये इसका capital है, capital of Georgia. Next is the Quit India movement का दूसरा name क्या है या उसकी date पूछी हुई थी. So its another name is August movement and it was started on 8 August 1942. Next question is the UN was formed in which year? So it was formed in 24th October 1945. Next question is the in Delhi proposal, Quaid-e-Azam demand is was the Muslims should be given one-third representation in the Central Legislative Assembly. So ये इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट क्वेश्चन पाकिस्तान फर्स्ट कंट्री टू एस्टेब्लिश एम्बेसी इन विच सिटी? सो बाकू अजरबैजान, ये इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट इज दी विच रिलीजन इंट्रोड्यूस बाय द अकबर? सो दीन इलाही इंट्रोड्यूस बाय द अकबर in 1882. Next is the please send this parcel dash my address. Please send this parcel to my address. So ये इसका right preposition थी. Next is the recent member of the Eurasia is the Iran. Iran joined a free trade agreement with the EU on 24th April 2018. यूरेशिया के पहले 5 members थे. It was created in 2015 जिसमें अर्मीनिया, बेलारूस, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान and रशिया शामिल थे. And Iran joined on 24th April 2018. Next is the head of GOV in Germany is the Chancellor of Germany. So his current Chancellor of Germany is the Angela Merkel.
तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी मेयर ऑफ लंदन सदीक खान की जो विन परसेंटेज थी वोट की वो कितनी थी? सो 55.2%, ये इसका राइट आंसर था, 55.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी रिलेशनशिप ऑफ हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु विद हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज द फादर इन लॉ, ये इसका राइट आंसर था। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी व्हेन पाकिस्तान फर्स्ट टेक पार्ट इन द ओलंपिक्स, सो 1948 में टेक पार्ट किया था पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम इन द ओलंपिक्स। नेक्स्ट इज दी व्हेन नेटो फॉर्म, सो नेटो फॉर्म्ड इन 4th April 1949 in Washington DC, USA. नेक्स्ट इज दी सोरेना ऑफ ईरान, इसका ये क्या है प्रोडक्ट, क्या है ये? सो सोरेना इज बेसिकली अ सीरीज ऑफ इरानियन ह्यूमनॉइड रोबोट्स नेम्ड आफ्टर द पार्थियन जनरल सोरेना। सो ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी करंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF का नाम बताना था। सो क्रिस्टीना जॉर्जिवा, ये करंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं IMF की। सो ये बिलोंग करती हैं बल्गेरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी ethics deals with the actions are called the normative ethics. So normative ethics, ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी नेम ऑफ द ट्यूटर ऑफ लता मंगेशकर। सो फर्स्ट ट्यूटर का नेम पूछा था। सो फर्स्ट ट्यूटर आई थिंक ये दीनानाथ मंगेशकर जो इनके फादर थे, आई थिंक यही थे इनके फर्स्ट ट्यूटर ऑफ दी लता मंगेशकर। ये सब इनके ट्यूटर थे, उस्ताद अमान अली खान। इसके अलावा ये और भी हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी इंडिया पाकिस्तान का जो मेन इशू है वो है कश्मीर, मसला कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ द कॉपर एंड टिन। सो कॉपर एंड टिन इज द अलॉय ऑफ ब्रॉन्ज। नेक्स्ट इज दी प्रोटॉन डिस्कवर बाय द अर्नस्ट रदरफोर्ड, ये प्रोटॉन डिस्कवर किया था 1917 से 1920 के मिड में। नेक्स्ट इज दी ग़ज़वा बदर में मुहाजिरीन की तादाद कितनी थी? सो 77 से लेके 88 के दरमियान में थी, क्योंकि जो पंजाब टेक्स्ट बुक है उसमें 82 लिखा हुआ है, सो कहीं पे 77 भी लिखा हुआ है। सो ये कन्फ्यूज़न है, अगर आपको पता है तो आप कन्फर्मेशन कीजिएगा। नेक्स्ट इज दी हाउ मैनी बोन्स इन ह्यूमन बॉडी? 206 बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट इज दी Tianwan is a Chinese program of the Tianwan is basically an interplanetary mission by the China National Space Administration to send a robotic spacecraft to the Mars. So it's basically a space mission. Next is the newest member of the Eurozone is the Lithuania. Lithuania is the newest member of the Eurozone. So next question is the Pakistan की highest salt mountain का क्या नाम है? So Saksar, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इज दी UN member are moved every month in which order? So it's more alphabetically order. So ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इज दी UN agency of which agency of UN promotes tourism? So UNWTO, United Nations World Tourism Organization, इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में है। सो ये प्रमोट करती है टूरिज्म को। नेक्स्ट इज दी Which agency of UN deals with food? FAO, Food and Agriculture Organization deals with the food. Next question is the health targets to be achieved by 2030 are set by which international organization? So it's basically a UN program जिसमें है Sustainable Development Goal SDGs. So ये total 17 goals हैं, जिसमें थर्ड नंबर पे health आता है। So ये basically by the UN. Next is the number of Pakistan among the producer of the sugar. So Pakistan ranked number 6. Next question is the current PM of UK. So current PM of UK is the Boris Johnson. Next one is the members of the Commonwealth countries के members total कितने हैं? 54 members हैं Commonwealth countries के। So it's an organization. Next is the current PM of Israel is Naftali Bennett is current the PM of the Israel. नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्पोरल पनिशमेंट एंड डे कब मनाया जाता है? सो April 30 इज द इंटरनेशनल डे टू एंड कॉर्पोरल पनिशमेंट फॉर द चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूरोपियन यूनियन के मेंबर बताने थे, टोटल 27 मेंबर है यूरोपियन यूनियन में। सो क्वेश्चन नंबर 49
ये कंप्लीट क्वेश्चन मुझे मिला नहीं, लाइफ बॉडी या लाइफ थ्री इस तरह कुछ लिखा हुआ है। सो अगर ये क्वेश्चन मुझे मिलेगा तो मैं इसको कमेंट में पिन कर दूंगा। नेक्स्ट इस दी, ये क्वेश्चन नंबर 50 से लेके 52 तक है। सो ये भी क्वेश्चन कुछ इस तरह है, इसके आंसर दिए हुए हैं, ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। द वाइट एंड ब्लैक डॉग डैश पार्किंग, सो इज इसका राइट आंसर है। इसी तरह ये प्रोनाउन का क्वेश्चन है, इसमें बताया होगा कि इसकी जगह पे दैम आएगा, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। इसी तरह इंग्लिश पंक्चुएशन के बारे में क्वेश्चन है, डैट्स वानस गैस। सो ये जो क्वेश्चन है अगर मुझे कंप्लीट मिलेंगे तो मैं कमेंट पे मेंशन कर दूंगा, बल्कि इसको पिन कर दूंगा। सो पोर्ट कासम इज़ इन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट कासम इज़ इन लोकेटेड इन कराची, ये कराची सिटी में लोकेटेड है। नेक्स्ट इज दी, ये भी कुछ मैथ के क्वेश्चन हैं। सो 2494 डिवाइडेड बाई 14.5 इज इक्वल टू 172, ये इसका राइट आंसर है। इसी तरह अ डैश वुमन वर्किंग इन डेज, सो इसका आंसर दिया हुआ है 36, ये इसका राइट आंसर है। सो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये भी कंप्लीट क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, अगर मुझे मिला तो मैं कमेंट में मेंशन कर दूंगा। सो नेक्स्ट इज दी, ये भी कुछ मैथ के क्वेश्चन हैं, ये स्टेट्समेंट वगैरह दी हुई हैं। सो कंप्लीट नहीं है, सो इसको भी मैं कमेंट में मेंशन कर दूंगा। ये क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है 1.14 एक्सप्रेस्ड एज परसेंट ऑफ 1.9 इज 60%, ये इसका राइट आंसर था। सो ये क्वेश्चन मुझे मिलेंगे तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी, रोहिंग्या मुस्लिम्स के बारे में ये 2 क्वेश्चन हैं। सो बेसिकली ये भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। सो रोहिंग्या पीपल आर बेसिकली a stateless Indo and Aryan ethnic group who predominantly follow Islam and reside in Rakhine State, म्यांमार में ये लोकेटेड है। सो ये 2017 में इन्हें रिपोर्ट कर दिया गया था बांग्लादेश में। सो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, बट ये कुछ इन्फॉर्मेशन है अबाउट दी रोहिंग्या पीपल्स। सो नेक्स्ट इज दी, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पंजाब, जो ब्रिटिश का जो लास्ट गवर्नर जनरल थे वो थे फ्रांसिस मोदी, ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इस थी, बलोचिस्तान में कौन सा ऐसा रिवर नहीं है, सो इसके बारे में बताना था। सो इसका जो राइट आंसर था वो था रीजर रिवर, सो ये नहीं है, ये गिलगित बल्तिस्तान में लोकेटेड है। नेक्स्ट इस थी, BCC का जो एब्रिविएशन बताना था। सो BCC इज बेसिकली ब्लैक कार्बन कॉपी, सो ये इसका एब्रिविएशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट टेम्परेचर इन द अंटार्कटिका, सो 18.3 डिग्री सेल्सियस इज द हाईएस्ट टेम्परेचर इन द अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी, पाकिस्तान का लार्जेस्ट डेजर्ट का नाम बताना था। सो पाकिस्तान लार्जेस्ट डेजर्ट इज दी थर डेजर्ट। नेक्स्ट इज दी, मूवीज आर नॉट वॉच्ड बाय मी, सो आई डू नॉट वॉच मूवीज, ये इस तरह का, ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट इज दी, गोमल जैम डैम इज लोकेटेड इन KPK, सो ये KPK में लोकेटेड है गोमल जैम डैम। सो नेक्स्ट इज दी, आई थिंक ये क्वेश्चन नहीं था पेपर में, ये शायद पिछली वाली स्लाइड से आ गया, सो ये इसके बारे में श्योर नहीं है। नेक्स्ट इज दी, पाकिस्तान एंड फ्रांस रिलेशनशिप साइंड इन 1951 अबाउट, सो ये क्या था, ये बेसिकली है फॉरेन रिलेशन थे बिटवीन पाकिस्तान एंड फ्रांस, वाज एस्टैब्लिश ऑन 31 जुलाई 1951 when both countries agreed to open embassy services in each country. So ये is basically it's a foreign relation between Pakistan and France to open embassy services in each country, which was signed in 1951. Next is the first निशान हैदर given to the Captain Muhammad Sarwar, ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट इज the agreement between two countries is called the bilateral agreement. So next is the study of animal diseases is called the epidemiology. So epidemiology ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इज दी, ये कुछ एनालॉजी के क्वेश्चन थे, मिराज डेजर्ट, सो ऑप्शन तो मेरे पास मौजूद नहीं थे, लेकिन ये रेनबो स्काई, ये इसका राइट आंसर होगा अगर ये ऑप्शन में होगा तो। नेक्स्ट इज द कॉफ़ी बेवरेज का एनालॉजी बतानी थी, सो बर्गर स्नैक्स, सो ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट इज दी, द गर्ल इज सिटिंग डैश हर मदर, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रेपोजिशन, सो गर्ल इज सिटिंग बिसाइड हर मदर, सो ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट इज दी, शॉर्टकट की फॉर स्लाइड शो F5, सो इट्स पावर पॉइंट में यूज होता है F5।
फॉर दिस स्लाइड शो। नेक्स्ट इज दी सो ये कुछ उर्दू के क्वेश्चंस हैं। ग्रेस सनफ का ताल्लुक है। सो जो आंसर दिए थे उसमें उसका आंसर नहीं दिया हुआ था। इसका जो जवाब है वो कसीदा के साथ ताल्लुक होता है, तो कसीदा इसका दूसरा जवाब था। नेक्स्ट इज दी अंजुमन तरक्की उर्दू का दफ्तर कहाँ पे लोकेटेड है? सो कराची, ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट इज दी काता और डैश, ये एक ज़रब अल मिस्र थी। सो काता और ले दौड़ी, ये इसका राइट आंसर था, काता और ले दौड़ी। नेक्स्ट इज दी तोता कहानी का तर्जुमा किसने लिखा? हैदर बख्श हैदरी। सो ये इसका राइट आंसर था, हैदर बख्श हैदरी। नेक्स्ट इज दी बहाउद्दीन ज़िक्रिया का मज़ार के बारे में पूछा था या यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा था? सो ये मुल्तान में लोकेटेड है। नेक्स्ट इज दी अबलीस की मजलिस शोरा नज़म ये किसने लिखी? अल्लामा इकबाल। सो ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट इज दी जावेद इकबाल ने अल्लामा इकबाल की आप बेटी लिखी, इसका नाम है जिंदा रूह। सो जिंदा रूह, ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट इज दी अल्लामा इकबाल ने कानून और पीएचडी के अलावा कौन सी डिग्री यूरोप से ली? सो कोई भी डिग्री यूरोप से नहीं ली इनके अलावा। सो ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट इज दी हज़रत अली ने कुरान के अल्फाज पर नुकात और अरब लगाने की जिम्मेदारी किसको सौंपी? सो अबू सऊद अल दौली, ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट इज दी ग़ज़वा अहज़ाब का दूसरा नाम क्या था? तो ग़ज़वा खंदक, ये इसका राइट आंसर था। सो आप सल्लम की वफ़ात के वक़्त कितनी बीवियां जिंदा थीं? सो आई थिंक ये 9 इसका राइट आंसर है। अगर आपको पता है तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट इज दी तबरीक इस्लाम का हुक्म किस सूरत में आया? सो सूरह हजर, ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, ये आपको पता है तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट इस दी उमवी खुफा की तादाद कितनी है? सो टोटल 14 तादाद है उमवी खुफा की। नेक्स्ट इस दी पहला उर्दू ड्रामा कौन सा है? सो इंदर सिबा, ये पहला ड्रामा है, ये 1852 में लिखा गया बाय दी सैयद आगा हसन अमानत लखनी ने। सो डेट्स ऑल फ्रॉम टुडे लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर दी अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।